Good morning, everyone. How are you, students? I hope you all are safe at your home. Now, we are going to start our third chapter, Fiber to Fabric, of class 7th. Before that, I want to ask some questions related to this topic, which are based on your previous knowledge. So, first, I want to ask you, what is fiber? Fiber, thin strands of thread, is known as fiber. And how many types of fiber? There are two type of fiber: natural fiber and synthetic fiber. Natural, which is obtained by nature, and basically they are provided by plants or animals. Examples of plant fibers are cotton and jute, and examples of synthetic fibers are nylon, terracotta, and different type of. Here we will discuss about fiber which are provided by animals, and they are also known as natural fibers like silk and wool. So in this video we will discuss about wool and their extraction. How does wool comes to us? ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वूल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में स्पेशली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वूल के बारे में, कि वूल हमें कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है, और किस टाइम हमें प्रोवाइड होती है क्या वूल, और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं. तो बेसिकली व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर? Animal fibers, wool and silk. Silk comes from silkworm and wool is obtained from sheep, goat and yak. Hence silk and wool are animal fiber. Both are animal fiber because both are obtained by animals. The hair of camel, llama and alpaca are also processed to yield wool. Processing fiber into wool. Life cycle of silk moth from cocoon to silk, and health problems of workers engaged in wool and silk industries. कि जो हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ के वर्कर्स में पाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. क्या क्या बताया मैंने? एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क. सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्कवर्म से मिलती है. और वूल कहाँ से मिलती है? उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल कैसे बनाई जाती है, सिल्क कैसे बनती है, पूरी लाइफ साइकिल, कोकून से सिल्क कैसे मिलती है, और क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं उन लोगों में जो इन कामों को करते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर्स आर, we will be able to learn about fabrics which comes from animal sources, learn which part of animals yield yarn, and we will be understand the process of extraction of wool and silk, and some occupational hazards which are seen in workers of these industries. Yes, before start chapter we will read some key concepts related to this chapter, like wool. The hairy skin of sheep has two types of fibers that form its fleece. क्या बनाते हैं? fleece का मतलब बाल. The coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin, जो कि स्किन के बिल्कुल नेयर होते हैं और एक होते हैं बाहर की साइड. ये तो हो गई हमारी किसकी बात? फ्लीश की. और फ्लीश का मतलब होता है बाल. किसके बाल? जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं सबके बालों को क्या बोलते हैं हम? फ्लीश बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट की कंसेप्ट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या है? कि ऐसे पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके जो बच्चे होंगे, ऑफ स्प्रिंग होंगी, वो भी कैसे होंगे? उन्हीं के जैसे कैरेक्टर्स वाले होंगे, यानी कि उनके हेयर भी कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे. उस टर्म को बोलेंगे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग. लाइक सम ब्रीड्स ऑफ शीप possesses only fine under hair, जिनमें खाली फाइन अंडर हेयर होते हैं. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ to sheep which have only soft under hair. This process of selective parents for obtaining special characters in their offspring is termed as selective breeding. Now we will read next key concept of wool.
Bulk of wool production worldwide comes from sheep, more than 95%, and in India sheep is reared mainly in hilly regions of Himalayas and plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Now I am going to tell you some breeds and their qualities of wool and states where they found. First one is Lohi, which provide good quality yield and mainly found in Rajasthan and Punjab. Next one, Rampur Bushire brown fleece and found in Uttar Pradesh, Himachal Pradesh. Nali, it provides carpet wool and found in Rajasthan, Haryana and Punjab. Bhakarwal for woolen shawls and found in Jammu and Kashmir. Marwari responsible for coarse wool and found in Gujarat, whereas Patanwadi for hojri and found in Gujarat state. So these are some breeds which are yielding wool and कहाँ कहाँ ये मिलती हैं ये हमारे यहाँ स्टेट्स भी दिए हुए हैं. नाउ वी विल रीड about animals that yield wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh, and Angora wool is obtained from Angora goat, which is of high quality and very smooth, feel found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Now next animal, wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft and fine. It is woven into premium पश्मीना शॉल. जो पश्मीना शॉल होती हैं जो कश्मीरी गॉट से बनती हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव होती हैं, इसीलिए इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट एनिमल कि अगर हम वूल की बात करें जो दूसरे एनिमल्स हैं लाइक कैमल also yield wool. The fur on the body of camels is also used as wool. The best camel wool is obtained from two-humped Bactrian camel, which is found in mountains of Siberia and Mongolia. Two-hump यानी दो कुबड़ वाला जो कैमल होता है उसकी वूल सबसे अच्छी होती है. नेक्स्ट वन इज लालमा एंड अल्पाका found in South America and they also yield wool. So there are different animals which we have seen in previous slides gives wool to us. They all are gives wool to us. Now we will discuss the steps which are involved in wool production, wool formation. Rearing of sheep यानी कि sheep पालन. India is an agricultural country where domestication of cattle plays an important role in the life of farmers and effects of economy of the country. यानी कि बेसिकली जो फार्मर्स हैं वो ही क्या करते हैं इन चीज़ों को यानी कि इन एनिमल्स को पालते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड. वूल ऑब्टेन करने के लिए शीप्स को पालना पड़ता है. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. Rearing of sheep involves proper planning for shelter and taking care of its basic hygiene. It also involves providing sheep proper nutrition and preventing diseases. Sheep is reared in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or in the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. यानी कि मेन जो स्टेट्स हैं वो यही हैं जहाँ पर शीप्स को बहुत बड़ी संख्या में पाला जाता है, बहुत बड़े नंबर में पाला जाता है. और किसके लिए? कमर्शियल पर्पस से, यानी कि उनसे वूल ली जाती है इसलिए. आफ्टर रियरिंग फीडिंग मैनेजमेंट ऑफ शीप शुड बी वेरी प्रॉपर. शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स. Oil cakes, material left after taking out oil from seeds is known as oil cakes. And minerals. In winters, sheep are kept indoor and are fed on leaves, grains and dry fodder. यानी कि क्या है, शीप्स होती क्या है आपकी हर्बीवोरस होती है. और हर्बीवोरस होने के अलावा ये क्या खाती हैं आपकी? ग्रास खाने के अलावा पत्तियाँ खाती है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियरर, जो इसके रियरर होते हैं चराने के अलावा इनको मिक्सचर देते हैं पल्सेस का, कॉर्न का, ज्वार का और ऑयल केक. और ऑयल केक क्या होता है? जो मटेरियल बच जाता है ना ऑयल सीड्स में,
सीड्स के बाद वो, एंड मिनरल्स और जो विंटर्स होता है, विंटर सीजन में इन्हें अंदर रखा जाता है और पत्तियां खिलाई जाती हैं, ग्रेन खिलाए जाते हैं और सूखा चारा खिलाया जाता है। तो ये एक प्रॉपर तरीके का फीडिंग मैनेजमेंट होता है शीप्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ वुल and steps which are involved in extraction of wool. First one is shearing, next one is scoring, then drying, then sorting, then carding and combing, and spinning and dyeing. We will study each step in very proper manner and one by one. So first we will study deeply about shearing. What is shearing? So what is shearing? Shearing, it is a process of removing of flesh of the sheep along with the thin layer of its skin. It is done manually with a large razor or with shearing machine. Shearing is conducted generally in hot weather so that the sheep does not feel cold and can survive easily without its protective coat. What is protective coat? Hair. The shearing process does not hurt the sheep because the upper part of skin is normally dead skin. यानी कि जो शेयरिंग का प्रोसेस है वो है क्या, एक जो ऊपर की अपर लेयर होती है उसको बालों समेत हटाना होता है। एक बड़े बड़े जो रेजर्स आते हैं उनसे ये प्रोसेस किया जाता है, या फिर मशीन्स भी आती हैं इनके लिए। फिर क्या है हमारा कि जनरली ये जो प्रोसेस है शेयरिंग का प्रोसेस वो कैसे वेदर में किया जाता है, गर्म मौसम में, क्योंकि गर्म मौसम में उन्हें बालों की ज़रूरत नहीं होती। जो हेयर होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कोट का काम करते हैं सर्दियों में, यानी विंटर में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और गर्मियों में इस चीज़ की यानी कि बड़े बड़े हेयर्स की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और जब उनकी शेयरिंग की जाती है तो ये नहीं कि वो उनको कुछ हर्ट होता है, उनकी बाहर की कवरिंग हटाई जाती है, बाहर ऊपरी लेयर हटाई जाती है जो नॉर्मली डेड स्किन होती है, इसीलिए कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता ड्यूरिंग शेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप विच वी विल डिस्कस दैट इज स्कोरिंग. It is a process of removing dirt, grease and dust from the sheared skin along with the flesh of the sheep. It can be done manually as well as with the help of machines. And some chemicals as well as detergent are used in this process. In which process? Obviously scoring. और scoring में होता क्या है, इस process में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में डर्ट और ग्रीस और जो डस्ट होते हैं जो शेयर्ड स्किन पे होते हैं उनको क्या किया जाता है अलग। इट कैन बी डन मैनुअली, इसको वॉश किया जाता है प्रॉपरली, इन हेयर्स को वॉश किया जाता है। और सम केमिकल्स, कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, कुछ डिटर्जेंट यूज़ हो सकते हैं, कुछ इस प्रोसेस में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वॉश किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज ड्राइंग. अब जब हमने उसको वॉश कर लिया तो उसको सुखाना है. ड्राइंग में क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग वेट हेयर आर देन ड्राइड इन द सन बाय कीपिंग दैम ऑन शीट्स और ऑन अ ड्राइंग रॉक्स. या तो सूखे पत्थरों पे रखा जाता है या शीट्स पर रखा जाता है डायरेक्ट सन की रोशनी में. इस प्रोसेस से जो हमारे स्कोरिंग में गीले हुए हैं वो हेयर फ्लीश, उनको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, अच्छे से सुखाया जाता है डायरेक्टली या तो सन की रोशनी में. Next process is sorting. This process involves the grouping of wool according to its texture. यानी कि यहाँ पर sorting, छटाई की जाती है उनकी बनावट के हिसाब से, जिस तरीके के वो हैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग रख लिया जाता है. Sorting is done by the sorters. Sorters ये काम करते हैं, sorters यानी कि छांटने वाले workers. Quality of wool is decided according to the length, texture, color, scale, स्ट्रक्चर्स एंड फाइनीनेस. यानी कि ये लंबाई पर, टेक्सचर बनावट पर, उनके कलर्स पर, स्केल स्ट्रक्चर्स पर और कितने पतले हैं कितने मोटे हैं उस बेसिस पे इनकी क्या की जाती है, सॉर्टिंग. सॉर्टिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप विच कम्स इज कार्डिंग एंड कॉम्बिंग. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस fibers are passed through rollers which make fiber smooth and straight and changes the fiber into a flat sheet called web. In this process long fibers are separated from sorters one and tangles are removed. इस process में क्या किया जाता है, rollers
रोलर्स क्या करते हैं, स्मूथ बनाते हैं फाइबर्स को और सीधा करते हैं और उनको चेंज कर देते हैं फ्लैट शीट्स में, यानी चादरों की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, फाइबर्स को। और इस प्रोसेस में जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और छोटों को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और इस दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो छोटे छोटे टेंगल्स निकलते हैं, जो हमारे कई बार कपड़ों पे रोएं बनकर सामने आ जाते हैं, उनको भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ से अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो कार्डिंग और कॉम्बिंग का मतलब यही है, इनको अलग करना। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग। In spinning, fibers are stretched and twisted to make them strong and change into yarn। यहाँ पर फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है, मिलाकर बड़ा बड़ा बनाया जाता है स्ट्रेच करके और यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। These yarns are wound onto बॉबिन्स, और इनको किस में रैप कर दिया जाता है, बॉबिन्स में। बॉबिन्स डायरेक्टली मशीन्स में लगती हैं जहाँ पर क्या होता है, वीविंग से कपड़े बनाए जाते हैं। After that, we will see next step, dyeing. In this step, the fibers are dyed into different color and according to dictates of fashion and demand. Dyeing can be done at 2 different stages. If dyeing is done after scoring, then it is called dyed wool, and if dyeing is done after it is spun, it is called yarn dyed। यानी कि अगर पहले हो जाए स्कोरिंग से तो उसको डाइड वूल बोलते हैं, और स्पन बुनाई के बाद हो, धागा बनने के बाद हो, तो क्या कहलाती है वो, कि धागा यार्न डाइड, कि उसका धागा डाई हुआ है। तो इसी वजह से हमें डिफरेंट कलर की वूल देखने को मिलती है, नहीं तो जो नेचुरल वूल है उसके 1 या 2 ही कलर होते हैं। ये बात है हमारी किसकी, डाइंग ऑफ वूल की। नाउ नेक्स्ट स्टेप, knitting and weaving. Wool can be changed into fabric by 2 processes called knitting or weaving. We get sweaters after knitting and we get woolen clothes, carpet after weaving. तो weaving और knitting दोनों ही बुनने के प्रोसेस है, बुनाई के प्रोसेस है, लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंस है। knitting में एक सिंगल थ्रेड चलता है, सिंगल थ्रेड काम में आता है, लेकिन weaving में 2 थ्रेड काम में आते हैं, तभी वो क्या बनता है, आपका कारपेट। और आपके जो वुलन क्लोथ्स हैं ये कौन से प्रोसेस से बनते हैं, आपके वीविंग प्रोसेस से। एंड स्वेटर्स कैन बी मेड ओनली बाय knitting. नाउ we will see some characteristics of wool. Wool does not wrinkle easily. Wool can trap lot of air which not allow heat to escape. It can absorb moisture up to 1/3 of its weight without losing its property. If we will burn wool, यानी कि एक स्पेशल क्वालिटी है, अगर हम वूल को जलाते हैं तो इसमें जो स्मेल आएगी वो कैसी आएगी, जले हुए बाल की जैसी। इट हैज़ गुड इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंसी। इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है आपकी, इलास्टिसिटी और रेजिलियंसी। इसकी जो कैपेसिटी यानी कि खिंचाव की प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और रेजिलियंसी मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं एक तरीके से। ये रेजिलियंसी मीन्स अपने आप को रिकवर करना, क्विक रिकवर करना। तो ये क्या है हमारे, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी विल रीड अबाउट ऑक्यूपेशनल hazard which occurs in workers of wool industry. The risk of illness, problem of accident faced by the workers in an industry are called occupational hazards. Some occupational hazards are sorters get infected. Sorters, workers which are working in wool industries. Sorters get infected by bacterium anthrax and it can cause a fatal blood disease called sorter disease। यानी कि ये एक बैक्टीरियम की वजह से, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की वजह से इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्करों में डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सॉर्टर डिजीज़। एंड नेक्स्ट वन इज सॉर्टर्स कैन सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज़ ऑल्सो लाइक अस्थमा बिकॉज ऑफ इनहेल स्मॉल हेयर्स वाइल सॉर्टिंग। Now this topic has been covered here, completed here. We will start our next topic, silk production, in our next video. Before that, you will see this video carefully and revise it and ask question from this topic from my WhatsApp number. Bye.